हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग समझने वाले हैं एक नया टॉपिक, राइट? जो हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे, एस सी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 में, राइट? तो उसमें अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? जो हमारा पिछला लेक्चर था वो था हाउ टू डिफाइन द टेम्परेचर स्केल, राइट? सो टेम्परेचर स्केल को डिफाइन करने के लिए हमने एक सब्सटेंस चूज किया था। दैट सब्सटेंस नेम इज मरकरी, राइट? इट हैज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी, right? So that can be used as a thermometric substance to construct any thermometer, right? So on that basis हमने मरकरी स्केल डिफाइन की थी कि कैसे उस मरकरी बल्ब थर्मोमीटर से हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट? आई एम जस्ट टेकिंग हियर recap of previous lecture, right? So what we did actually in previous lecture, we have derived the temperature equation which is written here, right? जो लिखी हुई है यहाँ पे। सो टेम्परेचर क्वेश्चन क्या थी? एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द मर्करी कॉलम करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर टी, राइट? दिस इज द लेंथ ऑफ द मर्करी कॉलम व्हेन द mercury bulb placed at the ice point, right? So this is the length of the mercury column when the mercury bulb placed at the steam point, right? Steam point आप सभी जानते हैं, that is corresponding to 100 degree centigrade, right? And this L naught, I mean again the length of the mercury column when the mercury bulb thermometer placed at the 0 degree centigrade, that is called ice point, right? Ice point. So corresponding to which we get the temperature equation, right? So this is written here that we have derived in previous lecture. If anybody is not seen at that lecture, right, that can go to the YouTube channel, right, where he and she can find that lecture, right? Then after that, we discussed about the centigrade system and the Fahrenheit system. And what is the Fahrenheit system, right? In the similar manner, the way of centigrade system, Fahrenheit system is also there, right? So in Fahrenheit system, what actually it is different? In Fahrenheit system and the ice point, right? The ice point defined in a Fahrenheit system corresponding in the way this is 0 degree centigrade in centigrade system, but in Fahrenheit system it is defined corresponding to 32 degree Fahrenheit, right? But the steam point, if I'm talking about the steam point, that is in centigrade system that is defined corresponding to 100 degree centigrade, but in Fahrenheit system it is defined around uh, 212 degree Fahrenheit, right? Means that in Fahrenheit, this is call it as a steam point, ice point, and this is call it as a steam point, right? Steam point. So steam point, if I'm talking about the ice point, which already we have discussed, right? I mean the temperature at which the ice start melting, right? And the steam point, the temperature at which the water start boiling, right? I mean it start converting from the liquid state to the vapor state, right? So now we discussed in previous lecture we discussed about the centigrade system and Fahrenheit system. What is the relation, right? So one relation we have derived in previous lecture, that is F equals to 32 plus 9 upon 5 times C, right? If you have the centigrade, any reading in a centigrade system, and then you want to convert that centigrade reading into Fahrenheit system, right? So this is the best formula where if you are putting the value in centigrade system, then you will get the value in Fahrenheit system. For example, if suppose I want to calculate the value of the steam point in a Fahrenheit system, so how will you can calculate? How can you calculate? 32 9 upon 5, and what the value of the C for the steam point, that is 100 degree centigrade, 100. So 5, this comes out to the 20. So if I am going to solve this, so 9 into 20, that is 180. So if we are adding these two quantities, right, we will get 213 Fahrenheit. So that's how this formula is working, right? So now comes to the next topic. So before next topic, we have to also explain few points, right? The point is regarding the expansion of the mercury, right? Expansion of the mercury. It is just a one thermometric property, which is very important term is the thermometric property, right? Means that it can be used to define the temperature scale and prepare the thermometer, which already we have discussed, right? So there may be
many others, means that there could be many other substance that could also used as a thermometric property. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि थर्मोमीटर कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें मरकरी की ही जरूरत पड़ेगी, राइट? देयर कुड बी द अनदर मल्टीपल, आई मीन सब्सटेंस अवेलेबल, their physical property also behaves like a thermometric property, right? So फॉर एग्जाम्पल उसी में हम एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का, राइट? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर आल्सो इंक्रीज्ड मोनोटोनिकली. मोनोटोनिकली मींस in a one direction with the temperature, and that may be used as a to define the temperature scale, right? To define the temperature scale कैसे? Suppose और नॉट क्या है इन द वे जैसे हमने एल नॉट डिफाइन किया था. एल नॉट वाज द लेंथ ऑफ द मर्करी कॉलम व्हेन द मर्करी बल्ब वी आर प्लेसिंग एट द आइस पॉइंट, राइट? आइस पॉइंट मींस 0 डिग्री सेंटीग्रेड. In the similar manner, the L100, it was when the mercury column bulb, I mean mercury bulb we are placing at the steam point, and we know the steam point that is corresponding to 100 degree centigrade, right? Then we get the mercury column length, right? L0 and L100. In the similar manner, we will get the length of the mercury column when we are placing that mercury bulb at the unknown point where we want to measure the temperature of that unknown body, right? Suppose we are placing, we want to measure the temperature of our body, right? So we are placing the mercury bulb inside our mouth for the sometime just to uh, attain the thermal equilibrium, right? So suppose the body temperature is T, and that we will get corresponding when the mercury column length is L, right? So that's how we are driving, I mean, the temperature equation, right? So in the similar manner, what is the R naught? R naught is the metal wire resistance when that metal wire placed at the ice point, right? Means the metal wire resistance corresponding to the ice point, and the R100 is the metal wire resistance corresponding to the steam point when that metal wire placed at the steam point that is corresponding to the 100 degree centigrade, right? So these are the denoting the resistance of the metal wire at the ice point and the steam point, right? and and the temperature which we are going to be measured with the platinum resistant thermometer, right? That is our next topic, which is going to be discussed further, right? So this equation we are going to be get, right? Whenever we are going, I mean, the way, I mean, we are going to be study the platinum resistance wire thermometer, right? So in that case, the temperature equation, this temperature equation we will drive, right? And we will see further. Just wait. So temperature of the ice point, that is 0 degree centigrade and 100 degree centigrade corresponding to the steam point in a centigrade scale, right? A platinum wire is often used to construct the thermometer. Means that platinum wire ज्यादातर यूज होता है थर्मोमीटर को कंस्ट्रक्ट करने में, राइट? सो सच थर्मोमीटर कॉल इट एज व्हाट? द प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर. व्हाई प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर? इससे पहले हमने देखा था मरकरी valve thermometer. Means that the mercury was the substance which is used to construct the thermometer. Here the platinum wire is the substance. Platinum wire is the substance which is used to construct the thermometer. But the inside the platinum wire, what is the thermometric property? That is the resistance of the wire is the thermometric property, right? So whatever temperature scale we will defining corresponding to the platinum resistant thermometer, that scale will call it as a platinum scale. That is very important to know. And the scale which is defined corresponding to the mercury bulb thermometer, that scale was the mercury scale. What was the scale? Mercury scale, right? So that scale was the mercury scale. But I will discuss further. These both scale are not the absolute temperature scale. I will discuss why these are not the absolute temperature scale. This is platinum scale and this is mercury scale, which we have already covered in previous lecture, right? Now comes to our main topic, that is platinum resistant thermometer. What is the platinum resistant thermometer, right? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. So first thing we have to know, I mean, platinum resistant thermometer that is working on the principle of the Wheatstone bridge, right? So now just look at the Wheatstone bridge. What is the Wheatstone bridge? That Wheatstone bridge having four resistance wire. One is P and Q resistance, and the R resistance, and this is X resistance, right? And in between these resistance arranged in such a circuit, and this is called battery. This is called battery, right?
This is the positive terminal and this is negative terminal. In between these resistance, this is galvanometer. Galvanometer. Galvanometer, right? You know why the galvanometer we are used? Just to measure the weak current in a circuit, right? So Wheatstone bridge क्या कहता है? Wheatstone bridge क्या कहता है कि if suppose Wheatstone bridge in a balance situation, then the ratio of the resistance at the P point divided by resistance at the Q point equals to the resistance corresponding to the R point and resistance corresponding to the X point. ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे. इनके रेशियोज क्या होंगे? बराबर होंगे. एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन कॉल इट एज ए बैलेंस्ड Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. Suppose if this is not going to be equal, P upon Q does not going to be equal R upon X, right? R upon X. Then in that case, balance Wheatstone का मतलब होता है means that the galvanometer reading will not deflect at any cost, right? This is the uh, deflection. I mean, this deflection needle of the galvanometer, right? That is not going to be deflect in case of the when the Wheatstone bridge at the valence situation, right? Suppose this ratio is not going to be equal. This ratio is not going to be equal. P upon Q does not equals to the R upon X. In that case, this is called unbalanced. This is called unbalanced Wheatstone bridge. Wheatstone bridge, right? So what happened in that case? In that case, that galvanometer needle going to be deflect, right? So whatever unbalancy inside the Wheatstone bridge, that is going to be deflect, indicate by the galvanometer, right? So how this principle working to construct our the platinum resistance thermometer, right? So just look at that was the Wheatstone bridge, and now I'm discuss about the platinum resistant thermometer, right? So platinum resistant thermometer क्या कहता है? कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है? Suppose there are two resistance, right? There are P and Q are the two resistance which are equal, right? Means that P equals to the Q. In this diagram, that P resistance you are able to see. This is the wire of the resistance. This P resistance equals to the Q resistance. This is the Q resistance, right? So, and the value of the exactly equal means the resistance of the P equals to the resistance of the Q, right? Now, now in the third arm, we are able to see the copper coil, right? So copper coil resistance. This is also having some resistance. Copper coil also made of the wire. This is the copper coil which is connected to the XX wire, right? And the XX is the compensating wire. XX is the compensating wire. So P equals to the Q and the copper coil resistance roughly equals to the connecting with the compensating wire, right? Platinum coil connected with the, and there this is the platinum coil. This is the, this is platinum coil. This is the platinum wire. Platinum wire, which is which is wrapped over over a mica sheet, right? So this is, this is mica sheet. ये प्लेटिनम वायर इससे कनेक्टेड है, आई मीन इस पे रैप्ड है, एंड दीज टू कनेक्शन, राइट? दिस इज इम्बॉयड ट्यूब मतलब दिस इज द वेरी हार्ड रबर, so that this wire cannot be connect, I mean comes to the connection and the circuit is going to be destroyed, right? So this separation we have to be maintained very strictly, ठीक ना? And these mica sheet platinum wire, this is starting from the by point, ठीक ना? And this wrapped, and this one end again going to be free, right? This is the YY, right? This is YY. So what is the job of this platinum wire? Platinum wire job is to measure this going to be this we are going to be dipped in a substance where we want to measure the temperature. Suppose हमें किसी substance का temperature measure करना है, then what we will do? That part, this much part, we are going to be dipped this platinum wire with the wrapped over mica sheet. This part we are going to be dipped in that substance where we want to measure the temperature. ठीक ना? If suppose we want to measure the temperature with the help of the platinum resistance thermometer, then what the our job?
this platinum wire which is wrapped over the mica sheet, which we are going to be dipped in that substance, then our this platinum resistant thermometer going to be measure the temperature for that, right? So now you see, and what is this XX? XX, this is the copper coil. I mean copper wire, right? This wire is copper wire, right? Copper wire. So now you see, there are three things we are able to see. If I am talked about in this particular arm, right? In this particular arm, if you are able to see till the point C, till the point C, क्या क्या है? In this particular third arm, if I am talked about the third arm, what we are able to see? Number eight, number one, the copper wire, right? Copper wire, right? Which is connecting with XX, right? This is, copper coil connecting with the XX, and this is XX, right? So this XX is called compen compensating wire, right? Compensating wire, compensating wire, right? And what is the third thing? Third thing, this XX, this extra wire is connected from the A to C. Then we can say the wire AC, right? So these three things construct the third arm of Wheatstone bridge, right? Third arm, right? So, and what is the fourth arm? What is the fourth arm? In fourth arm, we can say this is platinum coil. This is platinum coil, right? And this is wrapped over mica sheet, right? Which is connecting with the wire YY, right? Wire YY. सबसे पहली चीज क्या है इसमें? But the first thing, platinum wire, platinum wire, platinum wire. And what the second thing? Second thing क्या है इसमें? The connecting wire, connecting, connecting wire, right? And the fourth, I mean third thing क्या है इसमें? The ये वायर आप देख पा रहे हो? This is the CV wire, extra CV wire, right? And these three things form, fourth arc, right, of the Wheatstone bridge, right? अभी यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आई थिंक, राइट? दिस इज द थर्ड आर्म एंड दिस इज वी कॉल इट एज ए फोर्थ आर्म, राइट? फोर्थ आर्म इसमें क्या था? दिस इज द प्लेटिनम वायर wrapped over the mica sheet. This is mica, right? Which is wrapped and connected with the Y point. Y point, we know. I mean, this is the connecting wire, and this XX, this is the compensating wire. ठीक ना? So in third arm क्या था? Copper wire, compensating wire, and the wire AC. ठीक ना? Wire AC is the part of the wire AB, right? I will explain why this AC. I mean, we are every time taking in a the wire, जो अपना wire AB है, wire AB है, ठीक ना? Wire AB, which is having length of L, length of, right? और जो AC length है, right? That is going to be X, right? So remaining this AC wire length is X, right? So VC wire की लेंथ कितनी होगी? L minus X, right? L minus X, right? So अब हम एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक ना? हमारा काम क्या है कि platinum, when we are merging, when this platinum coil we are immersed in a bath where we want to measure the temperature, right? So this end point, ठीक ना, which is connected with the galvanometer, right? That we have adjusted over the length of the AB wire, ठीक ना? That point C we can slide over the AB wire, and the way we are sliding, हम तब तक इसको स्लाइड करेंगे जब तक गैल्वेनोमीटर की ये निडल क्या हो जाए? प्रॉपरली बैलेंस ना हो जाए, मतलब इसकी रीडिंग क्या हो जाए? जीरो, मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए गैल्वेनोमीटर में। तब तक हम एसी पॉइंट को क्या करेंगे? स्लाइड करेंगे। कहां से लेके कहां तक? पॉइंट ए से लेके बी तक। जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर की निडल जीरो पे आ जाएगी, आई मीन बैलेंस हो जाएगा, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा इस निडल में, राइट? उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सी। और वो पॉइंट हमें कब मिला? जब हमारा ये वाला जो स्लाइडिंग पॉइंट था वो एसी से कितना डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है? एक्स डिस्टेंस। जैसे ही वो एक्स डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है, वैसे ही हमें पॉइंट सी मिल जाता है।
ठीक ना। तब हमें पता चला कि AC वायर की लेंथ कितनी x है और CB वायर की लेंथ कितनी बची, L माइनस एक्स, राइट। तो आपको ये भी पता है कि कोई भी वायर हो मेटल से बना होता है, और मेटल में जो रेजिस्टेंस होता है, राइट, दैट इज रो एल अपॉन सी। रो एल अपॉन सी मीन्स दैट द every length of the wire associated with the some kinds of the resistance, right, means that ये जो कॉपर वायर है, जो अपना ये कॉपर वायर है, इसका भी अपना कोई रेजिस्टेंस होगा, जिसकी ये कॉपर कॉइल बनी है, दिस इज कॉपर कॉइल, दिस इज आल्सो हैविंग रेजिस्टेंस। तो हमने क्या माना कि कॉपर कॉइल रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर। कॉपर कॉइल रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर। जो अपना कंपनसेटिंग वायर है, कंपनसेटिंग वायर एक्स एक्स जो था, एक्स एक्स, राइट, एक्स एक्स जो कंपनसेटिंग वायर है उसका रेजिस्टेंस मैंने क्या माना, आर सी, ठीक ना। एंड वायर एसी, अब आप देखो, जो हमने एवी वायर माना था उसका रेजिस्टेंस हमने माना था स्मॉल आर। इसका रेजिस्टेंस आई मीन टोटल जो एबी लेंथ का रेजिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल आर, राइट। और आपको ये भी पता है कि जैसे ही वायर का लेंथ बढ़ता है वैसे ही रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, राइट। सो अभी हमारा वायर क्या है, एसी। सपोज हम ऐसे कह सकते हैं लीनियर रिलेशनशिप जैसे, कि जब वायर की लेंथ एल है तो हमारा रेजिस्टेंस आर है, ठीक ना। जब वायर की लेंथ यूनिट हो गई तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर अपान है, राइट। अब सपोज हमें एक्स लेंथ के वायर के रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है, तो एक्स के लिए रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर अपान एल इंटू एक्स। सो दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एसी, that much of the resistance it will come, right. So now you see, now I'm talked about कि what the resistance, suppose हाँ यहाँ पे जो प्लेटिनम वायर माइका सीट में लगा है, ठीक ना, उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, प्लेटिनम वायर में, प्लेटिनम वायर जो माइका सीट पे है उसका रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज आर टी, राइट। और जो कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर बाई बाई, उसका रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज आर सी। एंड द सी बी, वट एवर रिमेनिंग वायर ओवर द ए बी, राइट, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, जब हमारा वायर एसी का रेजिस्टेंस कितना निकला, एक्स बराबर आर अपान एल इंटू एक्स, तो फिर बीसी की लेंथ कितनी है, एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स, इतना ही तो वायर बचा है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, दिस इज नॉट द एक्स, दिस इज वायर एसी, आर ए सी, राइट। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बीसी ये कितना हो जाएगा, R was the resistance of the AB wire corresponding to length L, ठीक ना। तो R upon L is the unit wire resistance into multiplied with the length L minus X, right. So अब हमें सारी चीजें मिल चुकी हैं, राइट, सारी टर्मिनोलॉजी मिल चुकी है कि हमें थर्ड आर्म और फोर्थ आर्म में हमारे क्या रेजिस्टेंस आने वाले हैं, राइट। सो अब हम इसको थोड़ा नीट और क्लीन तरीके से लिखते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस समझने की कोशिश करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, राइट, टोटल टोटल रेजिस्टेंस in third arm, right, third arm, total resistance in a third arm कितना हो गया, थर्ड आर्म किससे बनी हुई है, कॉपर coil and this compensating wire and the AC length of the wire, right. So total resistance कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कितना था, दैट इज आर, प्लस कंपनसेटिंग वायर का रेजिस्टेंस कितना था, आर सी, प्लस वायर एसी का रेजिस्टेंस कितना था, दैट इज आर ऑफ सी, राइट। अब हम इसको फर्दर लिख सकते हैं, आर प्लस आर सी प्लस आर ए सी का रेजिस्टेंस कितना है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज स्मॉल आर अपॉन कैपिटल एल इंटू एक्स, ठीक ना। एंड दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस on the third arm of the Wheatstone bridge, right. So now our job is to calculate the total resistance in fourth arm of the Wheatstone bridge, fourth arm किस किस से मिलके बनी है, platinum wire which is wrapped over the mica sheet that we are going to be dipped in a substance where we want to measure the temperature। मतलब ये हमें पर्टिकुलर चीज कहाँ पे डिप्ट करनी है, जहाँ पे हम टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं, राइट। और उसका कितना रेजिस्टेंस है उस प्लेटिनम वायर का जो माइका सीट पे लपेटा गया है, दैट इज आर टी, प्लस कनेक्टिंग वायर जो वाई वाई कनेक्टिंग वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज आर सी, आर सी रेजिस्टेंस दैट इज सेम, मीन्स दैट समझने वाली बात ये है, दिस मच दैट मच ऑफ द कॉपर कॉइल, राइट, एंड वट एवर लेंथ ऑफ द बाई बाई कंपनसेटिंग वायर, मीन्स दैट यहां से लेके यहां तक जो भी लेंथ है बाई बाई कंपनसेटिंग वायर की, वही लेंथ है
एक्स में जो भी, सॉरी, वाई वाई जो कनेक्टिंग वायर, जो लेंथ है कनेक्टिंग वायर की यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है कनेक्टिंग वायर। और जो एक्स एक्स है, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जो भी एक्स्ट्रा वायर लग रहा है दैट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग वायर, राइट। सो आप एक चीज देखो कि कंपनसेटिंग वायर का रेजिस्टेंस आरसी सेम है कनेक्टिंग वायर वाई वाई के रेजिस्टेंस से। क्यों इक्वल है? बिकॉज द लेंथ ऑफ द बोथ वायर इज सेम। अगर हमने लेंथ अलग ली होती, राइट, तो फिर वो क्या होता है, रेजिस्टेंस अलग हो जाता है। इसीलिए कंपनसेटिंग वायर जो एक्स एक्स है उसकी लेंथ सेम है कनेक्टिंग वायर वाई वाई की, राइट। दैट्स वाई द बोथ रेजिस्टेंस आर दी सेम, राइट। और यहाँ पे ये है, ये आपकी प्लेटिनम कॉइल है, और ये जो रिमेनिंग आपको दिख रही है ना इतनी, राइट, सो दैट इज कॉपर कॉइल, दैट इज कॉपर कॉइल, कॉपर कॉइल, राइट। नाउ द टोटल रेजिस्टेंस इन द फोर्थ आर्म क्या हो गया, प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस एंड द कनेक्टिंग वायर प्लस रिमेनिंग जो सीबी वायर है, राइट। सीबी वायर की लेंथ कितनी, एल माइनस एक्स, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया ईसी में। सो द टोटल रेजिस्टेंस दैट इज आर टी प्लस आर सी प्लस स्मॉल आर अपॉन एल माइनस एल माइनस एक्स। So this is the resistance in a fourth arm. This is the total resistance in a fourth arm, right? Now, now, अब अब आते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट में। तो बैलेंस्ड बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है? व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑन द फर्स्ट आर्म दैट इज पी अपॉन resistance on a second arm that is q। resistance, this is first arm, resistance on a first arm upon the resistance on a second arm इक्वल होगा resistance resistance on a third arm upon resistance on a fourth arm, right। सो अगर हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। और हमने ये माना है, ये पॉइंट हमने पॉइंट सी वायर पे कब तक स्लाइड किया था, जब तक गैल्वेनोमीटर का नीडल क्या हो जाए, जीरो पे ना आ जाए, मतलब जब तक व्हीट स्टोन ब्रिज क्या हो जाए, जब तक व्हीट स्टोन ब्रिज प्रॉपरली बैलेंस ना हो जाए। और ये डिफ्लेक्ट कब करेगा, जैसे ही ये प्लेटिनम वायर, मतलब प्लेटिनम वायर की जो कॉइल है, आप जिस सब्सटेंस में डालोगे जहां पे आप टेम्परेचर मेजर करना चाहते हो, जैसे ही डालोगे वैसे ही क्या होगा, गैल्वेनोमीटर की आई मीन निडल है वो डिफ्लेक्ट होगी, राइट, डिफ्लेक्ट होगी। और फिर हमें इस पॉइंट को इस तरीके से सेटल करना है, इस तरीके से स्लाइड करना है ताकि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो जाए, जीरो हो जाए, राइट। और जैसे ही वो जीरो हो जाती है, राइट, इन दैट केस वी इन दैट केस जो भी हमारा टेम्परेचर मिलेगा, राइट, आई मीन जो भी हमारा रेजिस्टेंस मिलेंगे, विद दिस रेजिस्टेंस वी विल गेट द वन टेम्परेचर इक्वेशन, एंड दैट टेम्परेचर इक्वेशन विल गिव यू द रीडिंग ऑफ द एग्जैक्ट व्हाट इज द टेम्परेचर इज गोइंग टू बी, राइट। सो हम क्या करेंगे, तो हमारे थर्ड आर्म का रेजिस्टेंस क्या है बताइए, आर प्लस आर सी प्लस आर अपॉन स्मॉल एल इंटू एक्स, राइट, अपॉन फोर्थ आर्म का रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज आर टी प्लस आर सी प्लस आर अपॉन एल, एल माइनस एक्स, राइट। सो ये हमारा टोटल इक्वेशन क्या आ गया, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर प्लस आर सी प्लस आर अपॉन एल इंटू एक्स, आर टी प्लस आर सी प्लस आर अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स, ये हमारा आ गया। सो हमने जब ये प्लेटिनम रेजिस्टेंस वायर, जब प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जब कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया था, देन व्हाट वी सेड कि रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म क्यू इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म पी, राइट। मीन resistance in a arm P equals to the resistance in a arm Q, right? अगर ये दोनों equal है, means that the P upon Q is going to be 1 because the both resistance values in a arm P and Q are equal, right? So what will be the equation? Now we can write R plus RC plus small r upon L into X upon RT plus RC plus R, sorry, uh, this is small r upon L into L minus X, right, equals to the 1, right. So what we can write here, you can say R plus RC, इसको उधर लेके जाएंगे, small r upon L into X equals to RT plus RC plus small r upon L into L minus X, right, ये आ जाएगा। यहाँ पे जो देखो रेजिस्टेंस जो आपका थर्ड आर्म में एक्स एक्स था, दैट इज कंपनसेटिंग बाय, दोनों इक्वल है,
मैथमेटिकली हम इनको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, राइट। सो हमारा आर प्लस स्मॉल आर अपन एल इंटू एक्स इक्वल्स टू आर टी प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल आर एल अपन एल माइनस स्मॉल आर एक्स अपन एल, राइट। सो ये एल एल कट जाएगा, राइट, एल एल कट जाएगा। सो क्या आने वाला है भाई, कैपिटल आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, सॉरी आर टी बराबर हमें निकालना है, बिकॉज आर टी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम कॉइल, राइट। सो ये क्या आ जाएगा, ये आर है, और इधर स्मॉल आर को हमने इधर भेजा, देन दिस इज स्मॉल आर, ठीक ना। और ये माइनस वाला पार्ट आर इंटू एक्स अपॉन एल, और दिस इज आर इंटू एक्स अपॉन एल, इधर आएगा ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होके दिस इज 2 टाइम्स आर एक्स अपॉन एल, राइट। So this is very standard equation, RT equals to आ गया R minus small r into 2 small r x upon L. Now you see this is the standard equation, right? तो हमारी क्वेश्चन क्या आ गई थी बच्चों, हम वो क्वेश्चन को एक बार फिर से लिखते हैं। RT बराबर क्या आया था हमारा, RT equals to, ये आ गया था कैपिटल R माइनस स्मॉल r प्लस 2 टाइम्स स्मॉल r अपॉन L into x, right? So this is general equation we will get the from platinum resistance thermometer, right? From the Wheatstone bridge concept, right? So RT is the resistance of the platinum wire corresponding to the temperature T, right? Suppose now, suppose जब हम platinum wire, I mean जो वायर है उसको एक ऐसे सब्सटेंस में डिप करते हैं जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, राइट, मीन्स T बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। सो इन दैट केस हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर नॉट, राइट, ऑफ द प्लेटिनम रेजिस्टेंस वायर, राइट। सो दिस इज आर माइनस स्मॉल आर एंड दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन, so this is plus, right, 2 टाइम्स स्मॉल आर अपन एल। जो आप ये देख रहे थे कि वायर, आपने ये चीज देखी थी कि पॉइंट ए से लेके बी तक की लेंथ क्या थी वायर की, दिस इज स्मॉल एल, राइट। और पॉइंट सी जो था, जो जिससे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था, अगर हम बात करें गैल्वेनोमीटर, राइट, इसी पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था, राइट। यहाँ पे कॉपर कॉइल के साथ ये कनेक्टेड था एंड दिस इज प्लेटिनम कॉइल के साथ ये कनेक्टेड था, राइट। सो ये पॉइंट सी था, राइट, पॉइंट सी था। हम इस वाले पॉइंट को तब तक एडजस्ट करते हैं जब तक गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो जाए, 0 ना हो जाए, मतलब, या व्हीट स्टोन ब्रिज प्रॉपरली क्या हो जाए, बैलेंस ना हो जाए, राइट। सो हमने ये माना है कि जब ये प्लेटिनम वायर, जब हमारा ये पूरा व्हीट स्टोन ब्रिज जब बैलेंस होता है, राइट, सो ये सी पॉइंट की जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स, राइट, फ्रॉम द पॉइंट ए, एंड दिस इज एल माइनस एक्स फ्रॉम द पॉइंट बी, फ्रॉम द पॉइंट बी, राइट। सो दिस इज अवर कॉन्सेप्ट, राइट। सो इन दैट केस जब हमारा यहाँ पे ये जो कॉइल लगी हुई थी, राइट, इस तरीके से जिसमें एक वायर, प्लेटिनम वायर कनेक्टेड था, राइट, दैट माइनर, इन दिस मैनर, और ये हमारी कॉपर कॉइल, राइट, कॉपर कॉइल, कॉपर कॉइल, राइट। अब देखो इसको समझते हैं। तो जब आपका ये प्लेटिनम वायर एक ऐसे सब्सटेंस पे है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ठीक ना, तब आपका जो एक्स है दैट बिकम एक्स नॉट, दैट इज एक्स नॉट, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। When the temperature of the platinum coil which is wrapped over mica that is placed at the 100 degree centigrade, means that steam point, this is the ice point and this is steam point, steam point, right। now तब हमारा प्लेटिनम रेजिस्टेंस, प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस क्या हो गया, R100, राइट, R100 फ्रॉम द इक्वेशन 1 कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल R माइनस स्मॉल r प्लस 2 टाइम्स R अपॉन L इंटू x क्या हो जाएगा, दैट बिकम x100, मीन्स दैट
0 डिग्री पे जब ये है, देन पॉइंट सी उस स्लाइड होगा, जब ये एक्स मिलेगी दैट इज एक्स नॉट। अब जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा मैंने इस पॉइंट को, तब एक्स हमारा डिफरेंट मिलेगा, और जो भी एक्स मिलेगा दैट इज एक्स 100, राइट? सो दैट आई कैन से व्हाट, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, फ्रॉम द इक्वेशन 1, 2 एंड 3, राइट, हमें क्या मिला? अलग अलग रेजिस्टेंस मिले। इन द सिमिलर मैनर, जैसे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें क्या रेजिस्टेंस मिला? दैट इज R100, राइट। करस्पॉन्डिंग टू आइस पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमें क्या रेजिस्टेंस मिला? दैट इज R0। अब सपोज किसी सब्सटेंस का हमें टेम्परेचर मेजर करना है जिसका हमें नहीं पता, राइट? उसमें हमने ये प्लेटिनम कॉइल को डिप किया, राइट? तो टेम्परेचर हमने मान लिया दैट इज T डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस है दैट इज RT, राइट? RT, राइट। सो और उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट सी का डिस्टेंस है ए से, दैट इज एक्स। अब देखो, फ्रॉम द लीनियर इंटरप्रिटेशन, क्या लीनियर इंटरप्रिटेशन मीन्स? दैट ये जो स्केल का लेंथ है, द रेशियो ऑफ स्केल लेंथ विल बी सेम फॉर द बोथ द केसेस, राइट? मीन्स दैट रेशियो ऑफ स्केल का क्या कह सकते हैं? R100 माइनस R0, मीन्स दैट ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस सेम होगी, ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, राइट? मीन्स दैट आई कैन राइट RT माइनस R0 इक्वल्स टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन T डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दैट कैन आई राइट 100 अपॉन T, लिख सकते हैं। अब इसी को फर्दर हम अगर सॉल्व करें, रिजॉल्व करें, तो क्या मिल सकता है हमें? T बराबर क्या मिलेगा? ये मिलेगा RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इन। So this is the temperature equation. This is the temperature equation corresponding to what? This is the temperature equation. This is the temperature equation corresponding to the platinum resistant thermometer. Platinum resistant thermometer. अब इसी इक्वेशन को हम x के टर्म में भी लिख सकते हैं। x के टर्म मतलब जो हमारी गैल्वेनोमीटर का पॉइंट C है, जिसको हम वायर AB मतलब जो वायर की लेंथ L है, जिसपे हम स्लाइड कर रहे हैं जस्ट टू मेक द व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस सिचुएशन, राइट? सो उस टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? उस टर्म में कैसे लिख सकते हैं कि जो हमारी वैल्यूज हैं फ्रॉम द इक्वेशन 1, 2 एंड 3, RT की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे ये वाली, और R0 की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, R100 की R0 की डाल देंगे, राइट? सो अपने आप हमें क्या इक्वेशन मिलने वाली है? चला जरा हम इसको एक बार फिर से राइट करके देखते हैं, ठीक है ना? T बराबर RT में ये चीज देखिए कि कैपिटल R माइनस स्मॉल r प्लस 2 टाइम्स R/L इंटू एक्स माइनस, ये एक टर्म है, और दूसरा टर्म क्या है? कैपिटल R माइनस स्मॉल r प्लस 2 टाइम्स R/स्मॉल l इंटू एक्स नॉट, दैट इज एक्स नॉट, अपॉन अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r प्लस 2 टाइम्स स्मॉल r अपॉन l इंटू एक्स हंड्रेड माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r प्लस 2 टाइम्स R/L इंटू एक्स नॉट, यही है। अब देखो, जब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये इस टर्म से चला जाएगा, ये टर्म इस टर्म से चला जाएगा। अब 2R/L, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है, ये कॉमन होके बाहर आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू R/L इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन अपॉन 2 टाइम्स R/L एक्स हंड्रेड, एक्स और मल्टीप्लिकेशन में ये 100 और है जो ऊपर वाली क्वेश्चन में था, ये वाला पार्ट, राइट? माइनस एक्स नॉट इंटू 100, सॉरी, यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी है,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100, राइट। अब 2r/L ये कैंसिल हो गए, राइट। सो हमारी प्रॉपर क्वेश्चन क्या आ गई, t बराबर क्या आ गया, x। यहाँ पे देखो ये जो x है करस्पॉन्डिंग टू t, राइट। हम इसी को क्या बोल सकते हैं, इसी को हम एक्स टी भी लिख सकते हैं। मीन्स दैट x बराबर, जब हमारा करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर t, हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स टी। तो यहाँ पे x बराबर हम क्या लिख देंगे, एक्स टी माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स 100 माइनस एक्स नॉट into 100, right? So this is our equation, temperature equation corresponding to the length of the wire, right? On which the slider point C sliding just to make the Wheatstone bridge in a balanced situation, right? So sometimes in exam in IIT they will form the question on the resistance change, and sometimes they will ask the question regarding the length of the wire corresponding to the galvanometer point on that is sliding on the wire having length L, right? That is AB, right? So ये दोनों ही क्वेश्चन हमें किसका रिजल्ट देने वाली हैं? This will give you result of the platinum resistance thermometer, right? Means that RT minus R naught upon R100 minus R naught into 100. Both are equal. Both are equal. XT means X naught upon X100 minus X naught into 100. सो हम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, राइट। हम इसमें एस सी वर्मा के अनसॉल्व और सॉल्व सारे क्वेश्चन देखेंगे वन बाय वन करके। तब आपको पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट, आई मीन जितना हमने डिटेल में इसको ड्राइव करके समझा है, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट। आईआईटी वाले क्या करते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनाएंगे, राइट। वो क्या कह देंगे कि सपोज देर इज ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, ठीक है ना। तो उस पे करस्पॉन्डिंग टू मान लो टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर दे दिया, उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा जो गैल्वेनोमीटर बैलेंस हो रहा है वो सपोज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए पे बैलेंस हो रहा है, राइट। तो इस चीज को आप कब समझ पाओगे, इस चीज को तभी समझ पाओगे जब आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को डिटेल में समझा होगा कि कैसे वो एक्सप्रेशन आया, कैसे वो चीजें डेवलप हुई। जब हम उस डेवलपमेंट को प्रॉपर तरीके से समझ पाते हैं तभी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए कोई भी डेरिवेशन हो, कोई भी फार्मूला हो, हमें उसको ड्राइव करके देखना चाहिए कि कितनी डिटेल में और कैसे कैसे हम पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पे पहुंचे, राइट। अगर हम उस एक्सप्रेशन को अच्छे से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, राइट, तो उसके करस्पॉन्डिंग फिर चाहे कोई कितना भी वेरिएशन कर दे न्यूमेरिकल्स में, राइट, वी आर एबल टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल वेरी इजीली, राइट। हम कब फंसते हैं, जब हम डायरेक्टली फार्मूला याद रखते हैं, राइट। सपोज हमने डायरेक्टली बोल दिया होता प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, उसकी टेम्परेचर इक्वेशन ये है, आर टी करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर टी रेजिस्टेंस है, आर नॉट करस्पॉन्डिंग टू आइस पॉइंट रेजिस्टेंस है। इस तरीके से सारे टर्मोलॉजी बताते हैं, बट फिर भी आप इस चीज को नहीं समझ पाते कि व्हाट इज एक्स टी, व्हाट इज एक्स नॉट, व्हाट इज एक्स 100, व्हाट इज एक्स नॉट, राइट। इन सारी चीजों की जानकारी कब हुई, जब आपने प्रॉपर रेजिस्टेंस, इस पूरे मतलब सर्किट को सही से समझा है। और आईआईटी वाले मेनली इसी गैप से ही क्वेश्चन बनाते हैं कि जब आप किसी चीज को ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश करते हो ना, तभी आपसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन टैकल नहीं हो पाता, राइट। अब आप प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर से रिलेटेड कोई भी आप पिछली प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन आप आईआईटी का उठा के देखिए, और वेरी इजीली हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे आईआईटी के, तब आपको समझ में आएगा कि देखो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हमारा बन जा रहा है, राइट। सो अभी हमें हमारे ओवरऑल डिस्कशन से ये चीज क्लियर हो गई है कि हमारे पास दो तरीके की क्वेश्चन मिल गई है। ये टेम्परेचर क्वेश्चन जब आई थी, ये वाली क्वेश्चन जब आई थी, राइट, दिस इज दिस इज टेम्परेचर इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द मर्करी स्केल। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज मर्करी स्केल, बिकॉज this this temperature equation we develop with the mercury column, right, mercury thermometer, right. But for the platinum resistant thermometer, what equation we are getting, this is the temperature equation we are getting, right. अब इन दोनों ही टेम्परेचर, इन दोनों ही थर्मोमीटर में क्या डिफरेंट है, आई मीन हाउ दे आर डिफरेंट एंड हाउ they both are similar, at what point they will show the similarity, at what point they will not show the similarity, right. तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल ये है कि सपोज सपोज आपके पास एक थर्मोमीटर है, ठीक है, मरकरी थर्मोमीटर, राइट, मरकरी थर्मोमीटर, राइट। ये आपका मरकरी थर्मोमीटर हो गया, ठीक है ना। दिस इज दिस इज द बल्ब, राइट, एंड हेयर दिस इज द मरकरी कॉलम, राइट। अब इस पे क्या है ना, सेगमेंट कटे हुए हैं, राइट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू हो रहा है, राइट। देर आर 100 सेगमेंट वी आर
putting here, right? Means that every segment will tell you a temperature corresponding to the, suppose हमने किसी किसी की बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना था, हमने इस बल्ब को थोड़ी देर के लिए रखा जब तक इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, राइट? सो सपोज मर्करी कॉलम एक्सपेंड होके उसने 67 सेगमेंट पे हमें रीडिंग दी। मींस दैट कि अभी बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया, 67 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? मींस दैट पहले कुछ नॉर्मल टेम्परेचर रहा होगा, रूम टेम्परेचर, राइट? हमने रूम टेम्परेचर मान लिया। सपोज रूम टेम्परेचर पे जब हमारा थर्मोमीटर था तब हमारी उसकी रीडिंग थी 24 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? सो अभी जब हमने किसी की बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया, राइट, सो बॉडी का टेम्परेचर सपोज आ गया हमारा 67 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज नॉट पॉसिबल, बट लेट एज्यूम इट, ठीक ना? क्या आ गया 60, आई मीन बॉडी मतलब दैट कुड बी एनीथिंग, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो किसी का भी टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। तो अभी वो टेम्परेचर क्या आ गया, 67 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? सो नाउ इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर यही केस अगर हम प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर को समझने की कोशिश करें कि आखिर यहाँ पे ऐसा कैसे होगा। यहाँ पे क्या सीन है कि आपने देखा था, दिस इज द कॉपर कॉइल विच इज कनेक्टेड विद द wire AB, and there is a one galvanometer, that is G, which is collected with the point C, right? And this is AB, right? This is AB. And here it is connected with the platinum wire. This is a copper coil side. This is the third side of the Wheatstone bridge. And this is fourth side of the Wheatstone bridge. And this is connected with the one more resistance that is called P. And here it is connected with the one more resistance that is called Q, which is connected like this. And this wire is connected with the platinum कॉइल, राइट? प्लेटिनम कॉइल को ही हम किसी भी जगह प्लेस करेंगे जहां पे हम टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं, राइट? एंड दिस इज देयर इज वन compensating wire, this is XX, right? And here one more connecting wire, this is YY, right? YY। तो इस टाइप का ही हमने फिगर देखा था ऊपर, राइट? और जो AB लेंथ है दैट इज L। अब देखो दोनों ही थर्मोमीटर की क्या सिमिलरिटी है, क्या सिमिलरिटी नहीं है, राइट? सॉरी। सो अभी हमने क्या किया कि वायर ए से लेके बी तक क्या किया, इसमें भी हमने जितने सेगमेंट इसमें है 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक, इसमें भी हमने सेगमेंट काट दिए 0 डिग्री करस्पॉन्डिंग। ऐसे ही हमने 100 सेम लेंथ, राइट, सेम लेंथ के हमने सेगमेंट काट दिए, कितने, 100 सेगमेंट, राइट? सो अभी इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, राइट, कि जब हमने मरकरी थर्मोमीटर को आइस पॉइंट पे रखा, राइट, आइस पॉइंट पे रखा, जब हमने आइस पॉइंट पे रखा मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक ना? तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें मरकरी कॉलम की लेंथ मिली दैट इज L0, राइट? जब हमने मरकरी थर्मोमीटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा, राइट, तो हमें मरकरी कॉलम की लेंथ क्या मिली, L100, राइट? इन दी सिमिलर मैनर जब हमने प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर को इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा, तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर का जो ये पॉइंट है C, राइट, इसका जो डिफ्लेक्शन A से मिला दैट इज वो हमें क्या मिला, x0। जब हमने इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा तो हमारा जो डिफ्लेक्शन मिला पॉइंट सी का वो क्या मिला, x100, राइट? और हमने कोई अननोन टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा तब हमारा जो ये C पॉइंट का डिफ्लेक्शन A से मिला दैट इज xt। क्या मिला, xt। तो तीन तरीके के हमें पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे जब हमने मरकरी बल्ब को T डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा तो हमारा मरकरी कॉलम का लेंथ क्या है, L, राइट? सो अभी इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, हाउ दीज बोथ थर्मोमीटर आर डिफरेंट टू ईच अदर एंड द सिमिलर टू ईच अदर। तो कहने की मतलब लोगों का मतलब ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ये है कि ये दोनों ही थर्मोमीटर आपको एग्जैक्ट वैल्यू देंगे। मतलब जब आप मरकरी थर्मोमीटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब आइस पॉइंट पे रखोगे और प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर को आइस पॉइंट पे रखोगे, राइट, देन दे विल गिव द सेम रीडिंग, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये भी शो करेगा और वो भी शो करेगा। अब जब आप मरकरी थर्मोमीटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे और प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर को भी 100 पे रखेंगे, राइट, तब भी ये क्या करेंगे, आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर शो करेंगे, राइट? बट इन दोनों के बीच सपोज अब हमने टेम्परेचर को चेंज करना शुरू किया। टेम्परेचर को चेंज करने का मतलब ये है कि पहले हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा था मरकरी बल्ब को, अभी हमने 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा, राइट? सो
हमारा मरकरी कॉलम के लेंथ में कुछ चेंज आया होगा। सपोज हमारा जो चेंज है मरकरी कॉलम के लेंथ में वो है 24 सेगमेंट का, 24 सेगमेंट का। मतलब जो मरकरी कॉलम है वो 24 सेगमेंट ऊपर चला गया बाई चेंजिंग दी 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, राइट। अब देखो जरा प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के साथ क्या हुआ होगा, राइट। प्लेटिनम रेजिस्टेंस मतलब अगर ये दोनों ही टेम्परेचर, दोनों ही थर्मोमीटर इक्वली बिहेव कर रहे होते, तो कहने की बात ये है कि जब हमारा प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, ठीक ना, तो तब हमारा एक्स एक्स नॉट था, यहाँ पे डिफ्लेक्शन पॉइंट सी का क्या था, एक्स नॉट था, राइट। अब जब हमने प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर को 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा डिफ्लेक्शन जो एक्स एक्स का डिफ्लेक्शन क्या होगा, एक्स 24, राइट। मतलब जो चेंज एक्स की रीडिंग में आ रहा है, राइट, दैट इज एक्स 24 माइनस एक्स नॉट। मतलब ठीक है, ये चेंज आया। तो कहने का मतलब ये है कि जो चेंज यहाँ पे मरकरी कॉलम की लेंथ में है, वो चेंज यहाँ पे इसके इक्वल होना चाहिए। मैं तो ऐसे ही लग रहा था कि दोनों थर्मोमीटर अगर सेम है तो ये चेंज इक्वल होना चाहिए, बिकॉज ये सेगमेंट का ये सेगमेंट का जो लेंथ है वो ऊपर वाले थर्मोमीटर पे जो सेगमेंट कटे हैं वो इक्वल है। मतलब जो चेंज अगर हमने 24 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज किया, 24 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चेंज किया, तो जो मरकरी कॉलम की लेंथ में जो चेंज आया, वही चेंज हमें प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में भी दिखना चाहिए था, तभी तो इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। तो यही ऑब्जर्व किया गया कि ये चेंज इक्वल नहीं होता है। मतलब अगर मरकरी कॉलम में 24 सेगमेंट का चेंज आया है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि प्लेटिनम रेजिस्टेंस में भी 24 सेगमेंट का ही चेंज आए। क्यों ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये दोनों थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि मरकरी बल्ब थर्मोमीटर डिपेंड करता है मरकरी, जो भी थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस उसमें डाला गया, लाइट मरकरी डाला गया तो वो मरकरी पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे प्लेटिनम वायर यूज किया गया तो वो प्लेटिनम रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, राइट। मतलब जो भी वायर हमने यूज किया, अगर प्लेटिनम की जगह हम कोई और वायर यूज करते तो वो उसके थर्मोमेट्रिक जो भी प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस इज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर कहने का मतलब ये हुआ ओवरऑल कि जो चेंजेस, जैसे सपोज मरकरी चेंज हो रही है टेम्परेचर के साथ, अगर लोअर टेम्परेचर पे है तो वो धीरे धीरे एक्सपेंड करेगी। कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस का जो चेंज है टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग, और रेजिस्टेंस जो मरकरी कॉलम का चेंज है टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग, वो यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब हो सकता है हो सकता है 24 डिग्री सेंटीग्रेड के चेंज में मरकरी 24 सेगमेंट ऊपर चली जाए, बट क्या रेजिस्टेंस, मतलब प्लेटिनम रेजिस्टेंस में भी 24 सेगमेंट का चेंज आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये डिपेंड करता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पे। मतलब अगर हमने प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर लिया है तो ये प्लेटिनम प्लेटिनम पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और वो उसका बिहेवियर मरकरी पे डिपेंड करेगा। मतलब लोअर टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस चेंज होता है वो धीरे होता है, मतलब धीरे धीरे रेजिस्टेंस चेंज होता है। हाइयर टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस का चेंज होता है वो वेरी फास्ट होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। और मरकरी कॉलम के साथ भी यही है। बट अगर 1 डिग्री हम अगर चेंज करें टेम्परेचर प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर से अगर मेजर करें, तो उसमें रेजिस्टेंस का चेंज क्या होगा, वो मरकरी के चेंज, लेंथ के कॉलम के चेंज से बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब दोनों ही टेम्परेचर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज का बिहेवियर डिफरेंट है। इसलिए इसीलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये दोनों सेम करते हैं, सेम टेम्परेचर आपको मेजर करके देंगे। लेकिन बाकी के बीच में जो टेम्परेचर चेंज है, वो इनके बिहेवियर से कोई भी लेना देना नहीं है, एक दूसरे से कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। मतलब ये हो सकता है कुछ और दे, और वो, मतलब मरकरी बर्फ थर्मोमीटर कुछ और रीडिंग दे सकता है, और प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर कुछ और रीडिंग दे सकता है। और तब आप बोल सकते हो कि ये दोनों ही थर्मोमीटर डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं, जबकि हमारा हमारा टेम्परेचर चेंज क्या था, सेम था, 24 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज था। बट इनका बिहेवियर, मतलब ये दोनों, मतलब कॉलम जो मरकरी कॉलम के लेंथ में चेंज है वो अलग है, और रेजिस्टेंस वाले सेगमेंट में जो चेंज है वो अलग है। मतलब दे बोथ आर नॉट इक्वली बिहेव इन बिटवीन द टेम्परेचर, राइट। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये यूनिफॉर्मली बिहेव नहीं करते, ये कुछ भी डेटा दे सकते हैं, राइट। इसीलिए हमें एक ऐसे स्केल की जरूरत है, इसीलिए हमें फर्दर एक ऐसे स्केल के बनाने की जरूरत है
जो थर्मो जो मतलब एक ऐसी स्केल चाहिए। अभी तक ये स्केल हमने इसीलिए इसको नाम क्या दिया, प्लेटिनम स्केल, बिकॉज ये डिपेंड करती है प्लेटिनम रेजिस्टेंस पे। और उसको हमने क्या मरकरी स्केल बोला, क्यों? बिकॉज दैट इज डिपेंडिंग ऑन द मरकरी बिहेवियर, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें एक ऐसे स्केल डेवलप करने की जरूरत है जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पे क्या करे, डिपेंडेंट ना हो। ये दोनों स्केल क्या है, ये डिपेंडेंट है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पे, और हमें एक ऐसे स्केल की जरूरत है जो इन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड ना करे। बिकॉज अगर इन प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी तो फिर ये करेक्ट टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाएगी हर पॉइंट पे। बिकॉज ये कुछ स्टैंडर्ड दो फिक्स्ड पॉइंट है, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां पे तो ये सेम बिहेव करती है, बट इन बिटवीन ये बिहेव सेम नहीं करती है। इसीलिए हमें अब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बनाने की जरूरत है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, आइडियल गैस थर्मोमीटर, विच इज गिव द अब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, राइट। अब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल का मतलब ये है कि वो कोई भी आप कोई भी गैस यूज करिए, उसमें कुछ भी कोई भी थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस यूज करिए, वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने क्या यूज किया। यहाँ पे मरकरी हम यूज कर रहे हैं तो हमारा अलग, अगर अलग टेम्परेचर स्केल आ रहा है, प्लेटिनम यूज कर रहे हैं तो अलग आ रहा है। इसलिए हमें एक अब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बनाने की जरूरत पड़ी। और हम नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट वीडियो को होगा, उसी पे होगा, राइट, कि हाउ द अब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल डिफरेंट फ्रॉम द प्लेटिनम स्केल एंड मरकरी स्केल, राइट। तो आई थिंक बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि दोनों कैसे डिफरेंट है, राइट। बिकॉज ये जो थर्मोमीटर हमने बनाए, मरकरी बल्ब थर्मोमीटर और प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ये दोनों ही थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं। तो जो भी आप सब्सटेंस यूज करोगे, सपोज यहाँ पे प्लेटिनम वायर की जगह आपने कोई और, सपोज टाइटेनियम वायर यूज कर लिया, राइट, तो वो उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अगर मरकरी की जगह हमने कोई और सब्सटेंस यूज कर लिया, राइट, तो ये फिर उस ये उसकी स्केल अलग हो जाएगी, इन दोनों की स्केल अलग हो जा रही है। क्यों? बिकॉज दे आर डिपेंडिंग ऑन व्हाट, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, राइट। सो दैट वाज द ओवरऑल लेक्चर। सो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हाउ द बोथ thermometer are different and how the both the temperature scale different to each other, right. And thank you so much for today. that that was the overall lecture regarding the platinum resistant thermometer, how they are, why these temperature scale, platinum scale and mercury scale, are not absolute temperature scale, because they are depending on the thermometric property of the substance. Thank you so much.